ایک دن سے اگر دامن سے وابستہ ہو جائے تو طاقت کا یہ حال ہے، تو پھر رسول اللہ کے خاندان میں حسین کی گود میں پلے ہوئے شہزادوں کی طاقت کا حال کیا ہوگا۔ اسی لیے میرے عزیزو، حر بن یزید کو کئی جتھے مل کر کے حملہ کر کے حر بن یزید کو شہید کرتے ہیں۔ زہیر بن قیم بجلی جو قافلے میں امام علی مقام کے ساتھ ہوئے تھے وہ آئے، حبیب بن مظاہر آئے، مسلم بن اوسجہ اسدی، یہ امام حسین کے جانثاروں میں سے ہیں، یہ چاہنے والے محبان اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ آئے اجازت لیے اور امام علی مقام منع کرتے تھے، مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، مجھے بات کرنے دو، لیکن یہ جانثاران ایسے تھے، یہ محبان اہل بیت ایسے تھے، امام حسین کو باہر ایک قدم بھی آگے بڑھانے نہیں دیتے تھے اور کہتے تھے جب تک ہماری زندگی ہے امام علی مقام تو بہت بڑی بات ہے، آپ کے گھر کا کوئی بچہ بھی میدان میں ہم اترنے نہیں دیں گے۔ جتنے جانثار تھے سب آئے اور شہزادگان اہل بیت کو بھی آنے نہیں دیا۔ حبیب بن مظاہر آئے، مسلم بن اوسجہ آئے اور زہیر بن قیم آئے، یہ بھی دوپہر کے قریب لڑتے رہے، زوال تک لڑتے رہے، یہ تین ہی لوگ لڑتے رہے۔ کچھ لوگ آئے اور کوفہ کے لوگ مقابلہ نہ کر سکے، موت کے گھاٹ اتر گئے اور ان تینوں بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ امام علی مقام کے سگے بھائی جو تھے، مولا علی کی اولاد، امام علی مقام کے جو سگے بھائی تھے، عبداللہ بن علی، زید بن علی، بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، 5 شہزادے علی مرتضیٰ کے میدان میں تھے۔ یہ آئے ایک ساتھ امام حسین سے اجازت لے کر کہ ہمیں جانے دیں۔ حضرت عباس علمبردار، یہ بھی امام علی مقام کے بھائی ہیں، یہ موجود تھے امام حسین کے ساتھ۔ یہ 5 بھائی آئے اور یہ کہ بات دیگرے، انہوں نے کوفیوں کے سر اڑائے اور دمدار اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے اور جام شہادت یہ کہ بات دیگرے نوش کرتے رہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ خاندان اہل بیت کے لوگوں کا یہاں سے ان کی قربانیوں کی ابتدا شروع ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے 5 شہزادے میدان کربلا میں خاک و خون زاد، وہاں پر ان کی لاشیں بکھر گئیں۔ تو اب سیدنا عباس علمبردار، یہ امام حسین کے بڑے بھائی، یہ چھوٹے بھائی جو حضرت علی کی دوسری بیوی سے ہیں، یہ آئے، خیمے میں تھے، بیویوں کی بچیوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ ننھی سکینہ آئیں اور کہا چچا جان، پیاس کی شدت سے حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں میرے عزیزو، ہم نے رمضان کو محسوس کیا ہے، آج بھی روزے سے ہوں گے، ابھی دن نہیں ڈھلا ہے، لیکن پیاس کی شدت ابھی سے ہمیں پریشان کرتی ہے۔ کبھی محسوس کرو ڈوب کر کے خاندان رسول کے وہ شہزادے کیسے 2 دن کے بعد تیسرے دن کی پیاس برداشت کر رہے ہوں گے، جبکہ سورج اپنی تمازت بکھیر رہا ہے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں۔ وہ صبر کا پیکر، وہ صبر کا دامن کیسے تھامے ہوئے لوگ تھے، کمال کے لوگ ہیں، کمال کے۔ بی بی سکینہ نے تیسرے دن کہا اگر چند قطرے بھی مل جائیں تو ہم تازہ دم ہو جائیں گے۔ حضرت عباس کہے بیٹی تیری پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، میں جاتا ہوں۔ وہ ایک مشیزہ اٹھائے اور تلوار لیا، نیزہ لیا اور کوفیوں کی صفوں کو ترہم برہم کرتے ہوئے چیرتے ہوئے دریائے فرات پر پہنچ گئے۔ حضرت عباس جیسی وہاں گئے، کوفیوں کو مقابلے کی ہمت نہ ہو سکی، کوئی آ نہ سکا، سب کو ادھیڑتے ہوئے چلے گئے۔ اور کیسے نہیں ہاشمی جوان ہے، جب مشکیزہ بھر لیا تو چلو بھر پانی اٹھایا دریائے فرات سے اور اٹھا کر پینے، کیونکہ خود بھی پیاسے تھے، 3 دن کی پیاس تھی۔ کہا پیٹ بھر کر پی لو اور اس کے بعد یہ مشکیزہ لے جاؤں۔ جیسی قریب کیا دل گوارا نہ کیا، کہا خیمہ حسین میں بچے پیاسے ہیں اور میں یہاں پانی پی لوں، مولا حسین بھی پیاسے ہیں اور ان کی بچیاں پیاسی ہیں، عورتیں پیاسے ہیں۔ چلو میں جو پانی تھا پھینک دیا، مشکیزہ لے کر نکل پڑے۔ عمر بن سعد نے اعلان کیا کہ اگر یہ عباس کے ہاتھ سے مشکیزہ خیمے تک پہنچ گیا تو لڑائی مشکل ہو جائے گی، یہ جنگ مشکل ہو جائے گی۔ 22,000 کے نامرد پھر بھی ڈرے ہوئے ہیں، یہ لڑائی بھاری پڑ جائے گی، اس مشکیزے کو جانے نہ دو۔ دھوکے سے ایک کوفی آیا اور پیچھے سے حضرت عباس کے کندھے پر تلوار سے ایسے وار کی کہ ان کا ہاتھ کٹ گیا۔ مشکیزہ گھیرا تو حضرت عباس دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ ڈال لیتے ہیں اور تلوار بھی اسی ہاتھ سے چلاتے ہوئے صفوں کو چیرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ خیمہ حسین نظر آ رہا ہے۔ کوفیوں نے پھر جتھے کے ساتھ حملہ کیا، ان کے دوسرے بازو کو کاٹ دیا۔ دونوں ہاتھ مونڈوں سے اگر کٹ جائے اور پانی کا بھرا ہوا مشکیزہ گھیرا ہو، ہمت تو ٹوٹ جانا چاہیے، لیکن اس عباس کی جرأت کو سلام، دانتوں میں مشکیزہ اٹھایا، منہ سے اٹھا لیا اور کہا کسی طرح یہ خیمہ حسین تک پہنچ جائے، ہاتھ گئے ہیں تو جانے دو۔ ان کو ہاتھوں کی پرواہ نہیں تھی،
ہماری انگلی پر زخم ہو جائے تو ہم مرہم پٹی کے لیے بے قرار ہو جاتے. کٹ گئے بازو لیکن مشکیزہ دانتوں میں اٹھا لیا. جانے لگے تو کوفیوں نے تیر مار مار کر کے مشکیزے کو پھوڑ دیا, اور مشکیزے کا پانی جب بہنے لگا تو عباس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. بڑی محنت سے سکینہ کے لیے پانی لایا تھا اور کہا کہ خیمہ حسین کی طرف جانے کی اب ہمت نہیں ہوتی. پوچھے گی بچی پھر سے کہ چچا پانی لائے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو عباس علم بردار کہنے لگے مولا اس سے بہتر ہے کہ میں خالی ہاتھ تیرے نبی کے گھرانے کی طرف جاؤں, مجھے تو اپنی بارگاہ میں بلا لے. حضرت عباس علم بردار مشکیزہ پانی کا لانے کے لیے نکلے ہوئے تھے. کوفیوں کے جتھے نے ایسا گھیر لیا کہ ان کو نیزے مار مار کر کے زمین پر لٹایا اور ان کی گردن کو الگ کر دیا, شہید کر دیا. حضرت عباس جیسے ہی شہید ہوئے دور سے امام علی مقام دیکھ رہے تھے, دوڑتے ہوئے چلے آئے. کوفی ہٹ گئے تھے, شہید کرتے اور ہٹ جاتے, اپنی خیمے میں چلے جاتے یا اپنی فوج میں جا کر مل جاتے. کٹے ہوئے بازو, ایک بازو ادھر گرا ہوا ہے, ایک بازو ادھر گرا ہوا ہے. آج بھی ہم کربلا میں گئے, ہر سال جاتے دیکھتے ہیں ان کے جو بازو ہیں کٹے ہوئے, ہاتھ اتنے اتنے فاصلے پر دفن ہیں. الکف الیمنا الکف الیسرا لکھا ہوا ہے, سیدھا ہاتھ اور بایاں ہاتھ بہت دور دور دفن کیا گیا ہے, اور لاشا کٹا ہوا میدان میں ہے. 56 سال کی عمر ہے سیدنا امام حسین کی. آئے اور کہا مجھے کسی غم نے اتنا کمزور نہیں کیا جتنا میرے بھائی عباس کی شہادت نے کیا ہے. آئے اور اس لاش کو اٹھایا تو رب العالمین کی بارگاہ میں یوں کہا تھا الآن انکسر ظہری, اے مولا میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی, میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اور اس لاشے کو لائے, اپنے سگے بھائیوں کا جسم اٹھاتے ہوئے یہ 56 سالہ نواز رسول, تمہاری ہر ادا پر کروڑوں سلام ہے حسین, تمہارے ہر عزم حوصلے پر لاکھوں سلام. خیمہ پاک کی طرف آئے تو اس وقت دیکھا تو امام قاسم تیار ہو کر کھڑے تھے جو امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے تھے. 22 سال کی عمر تھی جن کی سگائی سکینہ بنت حسین سے ہو چکی تھی. مولا حسین کے پاس آئے اور کہا چچا جان میرے عم محترم مجھے جانے کی اجازت دیں. امام حسین نے جی بھر کر دیکھا اور کہا میرے مرحوم بھائی کی ایک ہی تو نشانی تھے, تمہیں دیکھتا تو میرے برادر گرامی کی یاد آتی, تم جاؤ گے. امام قاسم نے کہا اے میرے چچا جان میں رسول اللہ کی امانت کو لے کر کے جا رہا ہوں اور اس میدان میں میں تنہا آپ کو نہیں چھوڑ سکتا, مجھے جانے دیں. امام علی مقام نے بڑے آہ بکا کے ساتھ ان کو رخصت کیا تھا. یہ امام قاسم کی انٹری جو کربلا میں ہے وہ لکھی ہوئی ہے تاریخ تبری میں. کہا ہے جیسے امام قاسم پہلی مرتبہ گھوڑا اچھالتے ہوئے کربلا کے میدان میں آئے تھے اس وقت کوفیوں میں ہلچل ایسی مچی تھی. ایک کوفی شخص ہے وہ کہتا ہے ہمیں دن کے وقت سورج کی تمازت کے باوجود قاسم کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوا تھا کہ کربلا کے میدان میں 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے. چہرے پر وہ چمک تھی رسول اللہ کی شباہت تھی. میرے آقا کا, خاندان اہل بیت کا یہ جوان ہاشمی شیر جیسی آیا, پکارا حل میں مبارزین, کوئی ہے مقابل والا؟ تو کوئی آنے کو تیار نہیں تھا. تو حضرت امام قاسم نے کہا تم میں سے جو بڑا پہلوان ہے اس کو بھیجو. ازرق نام کا ایک پہلوان تھا کوفہ کا, بہت بڑا ہاتھی کی طرح چلتا, ایک بہت بڑا اس کو سانڈ کہا جاتا تھا. عمر بن سعد نے کہا ازرق تم جاؤ اس کے سامنے. وہ ٹھٹا مار کر ہنسنے لگا, کہا یہ بچے کے سامنے مجھے بھیج رہے ہو, میری پہلوانی تجھے پتا نہیں ہے, میری پہلوانی کا اندازہ نہیں ہے. عمر بن سعد نے کہا تیری پہلوانی بعد کی, وہ حیدر کرار کا پوتا ہے, فاتح خیبر کا پوتا ہے, تجھے پتا ہے, مقابل میں جا. کہا نہیں میرے 4 بیٹے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھیجوں گا, ابھی اس کا سر کاٹ کر لائے گا. ازرق کے 4 بڑے بیٹے تھے اور 4 پہلوان تھے. بڑے بیٹے کو بھیجا, امام قاسم کے پاس آیا. امام قاسم 3 دن کے پیاسے, لیکن تلوار ایسی چلتی تھی, ایسی تلوار چلائی کہ اس کا بڑا بیٹا ایک ہی وار میں ڈھیر ہو گیا. دوسرا آیا, دوسرے کو مونڈھوں سے ایسا مارا کہ وہ وہاں تڑپتا رہ گیا. تیسرا آیا, اس کو امام قاسم نے کاٹ دیا گاجر کی طرح. چوتھا آیا, اس کو بھی مار دیا. ازرق اب بفر گیا, میرے 4 بیٹے ایک کے بعد دکھ رہی ہے, ایسے کاٹ دیا جیسے سبزی کو کاٹا جاتا ہے. خود آیا اور اتنا ہاتھی کی طرح چنگارتا ہوا, دہاڑتا ہوا,
पुकारता हुआ कहा कि तूने मेरे घर को खत्म कर दिया, मैं तेरी ईंट से ईंट बजा दूंगा, तुझे खत्म कर दूंगा। इमाम कासिम ने कहा अजरक, मैंने सुना है तू अरब का बहुत बड़ा पहलवान है, शहसवार है, लेकिन तुझे तो घोड़े की जीन बांधनी भी नहीं आती। ये तो तेरे लिए ऐब की बात है, किसी फौजी को यह ताना देना बहुत बुरी बात थी। इमाम कासिम ने इस हीले से जैसे उसको कहा, अजरक को ये बहुत गुस्सा आया और वो अपनी जेन जो बांधी जाती थी गले के नीचे उसको देखने के लिए झुका, तो इमाम कासिम ने एक ही वार में उसकी गर्दन काट दी। कूफियों में इतना खौफ मच गया कि इतने बड़े पहलवान और उसके बेटों को एक साथ इसने जहन्नम भेज दिया। ये हाशमी जवान लड़ता रहा तो अमर बिन साद ने पुकार कर कहा, इस लड़के के मुकाबले में अकेले जाते रहोगे, ये शाम तक पूरे लोगों को काट कर रख देगा, लिहाजा इस पर हमला करो। सारे लोग तीरों से, हर जगह से लोग मुकाबले में आ गए। एक इमाम कासिम पर उसने 300 कुत्तों को छोड़ा। 300 कुत्ते कभी इधर से नोचते कभी उधर से नोचते। तन्हा अली का लाल हजारों में घिर गया, वो फातिमा का लाडला हजारों में घिर गया। और उसके बाद इमाम कासिम को इन 300 के जत्थे ने घोड़े से पकड़कर गिराया और उनकी गर्दन पाक को जिस्म से अलग कर दिया। ये इमाम हसन के बड़े बेटे से शहादत हुई। उसके बाद इमाम अली मकाम के बड़े बेटे अली अकबर आए। हजरत अली अकबर इमाम अली मकाम के बहुत चहेते बेटे, इनके चेहरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबसूरती थी। अरब कहते थे शबाहत थी, हम शबीह रसूल उनको कहा जाता है अली अकबर को। ये मौला हुसैन के पास आए, इनकी उम्र तो 19 साल की थी। 19 साल का जवान आया, किस अंदाज से रुखसत किया होगा अपने बेटों को इमाम हुसैन ने। हजरत अली अकबर को खुद घोड़े पर सवार करते हैं और बीवियों से कहते हैं इसे जाने दो। हजरत अली अकबर आए इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास जो बीमार थे, इमाम हुसैन के एक बेटे जो मैदान में बीमार थे, और उनको पकड़कर रोने लगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा भाई रो क्यों रहे हो, कोई भी हमारा जाने वाला रो कर नहीं गया है, तुम क्यों रो रहे हो। कहा मैं इन कूफियों से डर कर नहीं रो रहा हूं, बल्कि इसलिए रो रहा हूं कि मेरे बाद ज़ैनुल आबिदीन तुम बीमार हो, कहीं इन जालिमों के सामने तुम्हें हथकड़ियां डालकर ले जाकर खड़ा ना कर दिया जाए। वो मंजर मेरी नजरों में है, इसलिए रो रहा हूं कि मेरे बाद कुत्ते तुम्हारे साथ क्या कर लें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मैं रसूलुल्लाह की अमानतें रखता हूं, सब्र करूंगा। हजरत अली अकबर घोड़े पर सवार होकर के आए। तारीख में इतने नाम हैं कि हमें याद नहीं रह जाते, इतने नाम कूफियों के लिखे हुए। बड़े बड़े लोग अली अकबर के मुकाबले में आए थे, कूफा के वो लोग भी आए थे जिन्होंने इनके बाप को खत लिख कर बुलाया था। और हजरत अली अकबर का जोश ऐसा था, मारते थे, सफों में जाते थे और फिर घोड़ा दौड़ाते हुए वापस आते थे इमाम हुसैन की तरफ। यूं कूफियों के दरमियान सफों को चीरते हुए जाते और फिर वापस आते थे। बार बार आते थे तो क्यों आते थे, तारीख निगारों ने कहा है दूसरे जो गए वापस नहीं आए। अली अकबर ऐसे थे, सफों को चीरते हुए जाते थे और फिर वापस आते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे। इमाम हुसैन खीमे के बाहर टेक लगाए बैठे हुए थे। वो बोझल कुर्बानियां इमाम अली मकाम को किस तरह से बोझल कर चुकी होंगी। तारीख निगारों ने बताया अली अकबर से किसी ने पूछा कि क्यों बार बार आते हो, कहा बात दर हकीकत यह है हम 3 दिन के प्यासे हैं, कोई पानी नहीं देता। मैं हुसैन आजम मेरे बाप के चेहरे को देखता हूं तो प्यास कम हो जाती है, थोड़ी प्यास कम हो जाती है। ये इमाम अली मकाम के चेहरे पाक को देखते और यूं कहते अल आतशिया बता, बाबा जान प्यास बहुत सताती है, प्यास। इमाम हुसैन जवाब में सिर्फ इतना कहते बच्चे सब्र कर, तेरे लिए फुरात नहीं हौज़े कौसर है, हौज़े कौसर है। हजरत अली अकबर गए, जालिमों ने दोपहर तक मुकाबला किया, जोहर का वक्त आ चुका था। हजरत अली अकबर लड़ते रहे, इनको घोड़े पर से गिरा दिया गया और इनकी लाश के ऊपर घोड़े दौड़ा दिए गए। हजरत अली अकबर को जिस्म को ऐसे छलनी कर दिया गया था कि यजीदी बार बार घोड़ा दौड़ाते थे उस नाज़नीन नर्म नाजुक जिस्म पर। और इमाम अली मकाम हटाते रहे, कूफियों छोड़ दो मेरा बच्चा जा चुका, छोड़ दो मेरा बच्चा खत्म हो चुका है। कूफी जब हटते हैं तो तारीख निगारों ने बताया इमाम अली मकाम जिस्म को यूं समेटते थे, करबला के मैदान में समेटते थे। मेरे अजीजों, किसी की मौत के बाद हमें आज लाश को उठाने में डर लगता है। उस बाप ने तो टुकड़े जमा किए हैं,
टुकड़े जमा किए और अपने कंधे पर वो बोझ उठा कर लाते और खीमे पाक के पास लाशें जमा करते रहे, गिनते थे। हैरत होती है, मैं हजार चाहता हूं कि गम का इजहार तन्हाई में हो, मजमे में ना हो, लेकिन दिल बेकाबू होता है, क्योंकि रसूलुल्लाह के अहले बैत से जो हमारी अकीदतें जुड़ी हुई, हमारी मोहब्बतें जुड़ी हैं, मौला हुसैन को हम अपने नजात का जरिया समझते हैं और हमारा अकीदा उनसे वाबस्ता है कि कल क़यामत के दिन वो हमारी सिफारिश करेंगे, इसलिए उनका गम हल्का नहीं होता हमारे लिए। जब इमाम हुसैन इन शहादतों को देख रहे थे, आपकी बीवी छोटे बच्चे को लेकर आई थी, अली असगर को कहा इसको पानी पिला लाएं, हो सकता है इस पर रहम कर देंगे। हजरत अली असगर को ले जाकर कूफियों के सामने कहा था, बच्चा तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, इससे तुम्हारी दुश्मनी नहीं, इसको पिला दो, इसकी मां का दूध सूख गया है, इसको कुछ पानी मिल जाए, 6 माह का है। कूफियों की तरफ से किसी ने तीर चलाया और सीधे अली असगर के गले में आकर चुभा। वो बच्चा हिचकियां लेता हुआ जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दिया। मौला हुसैन के हाथों में ये रोता हुआ बच्चा चला गया। इमाम हुसैन उस वक्त एक तीखा जुमला सुन रहे थे, कड़वा जुमला कूफियों की तरफ से। मारा तो मारा, लेकिन ये कहा, ऐ हुसैन तुम्हारे बेटे को ऐसा पानी पिलाएंगे कि दोबारा नहीं मांगेगा। और सही में इमाम हुसैन खून में लथपथ अपने छोटे बच्चे को सीने से लगाए हुए वापस आ रहे थे, और बच्चा जब खामोश था तो बीबियों को यह लग रहा था कि पानी पिला दिया गया होगा। बीवी आगे बढ़कर पूछती है, बच्चा बहुत खामोश है, पानी पिला दिया गया? इमाम हुसैन ने कहा कि ऐसा पिलाया कि अब दोबारा तुझसे कभी पानी नहीं मांगेगा। यह कहकर के जैसे ही अली असगर को अपनी छाती से अलग करके दिखाया तो गला कटा हुआ है, तीर चुबा हुआ है, हलकूम से खून रस रहा है। बीबियां तुम्हारे सब्र पर हमारी जिंदगियां कुर्बान, हम में से कोई तुम्हारे कदमों तक नहीं पहुंच सकता। तो उन्होंने जो सब्र का मुजाहरा करबला के मैदान में किया है रसूलुल्लाह के खानदान की बीबियों, सलाम हो तुम्हारी आंचलों पर, सलाम हो तुम्हारी इज्जत और अतार पर। हम में से हमारी जिंदगियां तुम्हारे इस अज़्म के 1/5वें हिस्से को भी नहीं पहुंच सकते। उस छोटे बच्चे को भी लिटा दिया गया। इस शाम गरीबा को याद करते हैं। आज आशूरा का दिन है, आज आशूरा का दिन है इमाम आली मकाम के लिए। इसीलिए शायर ने कहा है कि करबला का खूनी मंजर है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बपा है मियां ने अहले बैत। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियां ने अहले बैत। इमाम अली मकाम ने देखा ये के बाद दीगरे मेरे भाई गए, मेरे अब्बास के बाजू काटे, मेरे बच्चे को इन्होंने हलक से छलनी करके मार दिया। अली अकबर को भी शहीद किया, कासिम को भी शहीद किया, बचा कोई नहीं था। एक ज़ैनुल आबिदीन बिस्तर से उठ बैठा, जवान शहजादा कहने लगा, बाबा जान मैं जाता हूं। इमाम अली मकाम ने माथा चूमा, कहा, ज़ैनुल आबिदीन तू भी जाएगा तो मेरी नस्ल किससे चलेगी? तुझे जिंदा रहना है, और अगर मेरे मौत के बाद बता इन बीबियों को कौन देखेगा? मेरे घर तो अभी कोई मर्द बचा नहीं, कौन जवान है जो इनका सहारा होगा? लिटा दिया बिस्तर पर, तुम आराम करो। मौला ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद की कुर्बानियों को भी मैं महसूस करता हूं मेरे अजीजों। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो करबला के मैदान में लेटे लेटे देखते थे, जानते हो इनकी जिंदगी कैसी हो गई थी? करबला के बाद जब ये मदीने वापस गए थे तो कभी भी किसी कसाब की दुकान के पास खड़े होते तो रोने लग जाते थे। खुला गोश्त देखते, कोई कसाई जो गोश्त बेचता था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आते थे तो जल्दी चादर डाल देते गोश्त पर। लोग पूछते क्यों? कहा वो जो इमाम आ रहे हैं ना, अभी ये कच्चा गोश्त देखेंगे रोने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर के गोश्त के टुकड़ों को देखा था। उनकी जिंदगी ऐसी हो गई थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक बार एक कसाई को बुलाया और पूछा, तुम जानवरों को कैसे ज़बह करते हो? कहा, किबला रुख लिटाते हैं, पानी पिलाते हैं, पढ़ते हैं और फिर ज़बह करते हैं। चीख मारी और कहा, दुनिया वाले जानवरों को पानी पिलाकर ज़बह करते हैं, मेरे बाप को कूफियों ने 3 दिन की प्यास के बाद ज़बह किया था, मेरे घर वालों को 3 दिन की प्यास के बाद ज़बह किया था। हर कुर्बान होने वाला जानवर पानी पी करके ज़बह होता है। रसूलुल्लाह के घर का शहजादा
बगैर पानी पिए दुनिया से गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी का हाल था। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, गम उनका हक था। कई मर्तबा मदीने वाले उनके पास आते और उनको हंसाने के लिए कोई बातें कहते हैं, आप हंसते नहीं, जिंदगी भर किसी ने आपको हंसते हुए नहीं देखा। लोग कहते गम हो गया, कभी तो मुस्कुराए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते तुम उससे हंसने की उम्मीद रखते हो जिसके सामने उसके बाप के टुकड़े हैं, उसके भाई के टुकड़े हैं, उसके घर की औरतें बेआबरू हो गई, तुम उसके हंसने की उम्मीद रखते हो। लोगों खैर करो, शुक्र करो कि आंसू निकलते हैं, यहां तो खून निकलना चाहिए। यकीनन उनके घर पर जो हालात आए, मैं समझता हूं दुनिया में किसी और के पास होते तो इतना बड़ा इम्तिहान नहीं दे सकता था, इतना बड़ा इम्तिहान नहीं दे सकता था। इमाम हुसैन अजीम, उस कायद को लाखों सलाम। अब इस मैदान करबला में बीवियों के सामने आए। सैयदा ज़ैनब जल्दी से एक संदूक लेकर के आई, पेटी लेकर आई और अपने भाई को संदूक खोलकर एक जुब्बा पहनाने लगी। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक था। इमाम हुसैन ने कहा, मेरी बहन, मेरी हमशीरा, आज तो क्यों पहना रही है? कहा, भाई जान, ये जुब्बा मेरे अम्मा ने दिया था, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा ने दिया था अपनी मौत से 2 दिन पहले, और कहा था बेटी इसको संभाले रखना, मेरा लाडला एक दिन मैदान में उतरेगा, उस वक्त उसके आसपास कोई नहीं होगा, तू अपने हाथ से उसको यह जुब्बा पहनाना, इसलिए कि उसको उसकी मां से बड़ी मोहब्बत है। इमाम हुसैन को यह कहती हुई वो जुब्बा पहनाती रही। इमाम आली मकाम अपनी मां को याद करके रो पड़े, अपनी मां को याद करके रो पड़े। क्यों ना रोए? एक इमाम मुस्लिम है जिन्होंने एक रिवायत बयान की है, वो कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा था एक बूढ़ी औरत अपने चेहरे पर चादर डाली हुई झाड़ू लेकर मैदान झाड़ रही है। मैं करीब जाकर पूछा, बीबी तुम कौन हो? वो अपना चेहरा नहीं दिखाती और कहती है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा हूं। कहा, यहां क्यों झाड़ रही हो? कहा, कल मेरा बच्चा यहां गिर कर शहीद होने वाला है, इस मैदान की कंकरियां साफ कर रही हूं। मेरे अजीजों, उस फातिमा ज़हरा के इस अजीम लाडले का आखिरी दीदार है, जिसके हलकूम को मेरे मुस्तफा ने चूमा है, उनका आखिरी दीदार है। जो दोषे पैगंबर का राकिब सवार है, उसका आखिरी दीदार है। जिनसे शरीयत मुस्तफा चली, उसका आखिरी दीदार है। रसूलुल्लाह का जुब्बा पहना, अमामा पहना, हैदर कर्रार की तलवार जुल्फिकार हाथ में ली, जाफर तैयार का पट्टा और हजरत अमीर हमजा का नेजा हाथ में लिया। सारे तबर्रुकात एक साथ ज़ेब तन किए। इमाम आली मकाम ये सारे तबर्रुकात पहनकर खीमे से निकलना ही था कि औरतों की आवाजें आ गई। कहा, छोटी सकीना आई और कहा, बाबा जान, ये कूफी तो 6 माह के बच्चे को पानी न पिला सके, आपके बाद ये हमारे साथ क्या करेंगे? आप किसके हवाले हमें छोड़ रहे हैं? इमाम हुसैन ने सिर्फ इतना कहा, सकीना, अल्लाह उसके रसूल के हवाले तुम्हें करके जा रहा हूं। सैयदा सकीना से कहा, बेटी, चाहे जैसे भी हालात हो जाए, तू अपने हिजाब की पाबंदी रखना, तू अपने पर्दे की पाबंदी रखना। ये आखिरी वसीयतें थी अपने खानदान की अहली औरतों के लिए। और बीबियां ये चेहरा देखती रह गई। मेरे अजीजों, हम तो जनाजा जाते हुए लोगों का देखते हैं, रो पड़ते हैं, लेकिन वो जिंदा जावेद घर से जब रुखसत हो रहा है, दूल्हा बनकर घोड़े पर सवार हुआ, और वो अजीम उनका घोड़ा, जो वफादार घोड़ा, जो हर जंग में आपके साथ रहा, आज वो घोड़ा भी बढ़ने को तैयार नहीं था। आगे बढ़ने को उसको एड़ लगाई, उसको मारा, आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। मौला हुसैन ने देखा, घोड़े से उतरकर बीबी सकीना उसकी टांगों को पकड़े हुए बैठी हुई है और बार बार घोड़े से कहती जाती है कि ए घोड़े, ए सवारी, मेरे बाबा जान को न लेना, इसलिए कि आज अगर तू सवार करके ले जाएगा तो ये वापस नहीं आएंगे। नन्ही सकीना को आपने गोद में उठा लिया और कहा, इस अजीम सवारी को ना रोकना, इसलिए कि आज मेरे इम्तिहान का दिन है और तुम्हारे सबर के इम्तिहान का दिन है। ये कहते हुए इमाम आली मकाम घोड़े को दौड़ा दिए। ये आखिरी दीदार था। फिर मैं हुसैन की तरफ से जो ये शहजादा गुलगू खबा रसूलुल्लाह का यह हसीन शहजादा निकला, तो मैदान करबला में आकर फिर वो खुतबा दिया
جو हुर बिन यजीद के सामने दिया था, अम्र बिन साद के सामने दिया था। आज 10वीं मुहर्रम थी, जुमा का दिन था और ऐन जोहर का वक्त है। उस वक्त हुसैन आजम करबला के रेगजारों में खुतबा देते हैं, अल्लाह की हम्द बयान की, रसूलुल्लाह पर दुरूद व सलाम भेजा और कहा, कुफियो क्या तुम्हें मेरी निस्बत पता है? मैं उस फातिमा का बेटा हूं जो रसूलुल्लाह के जिस्म का टुकड़ा है। क्या तुमने मेरे मुतालिक नहीं सुना? मेरे आका ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। क्या तुम्हें मेरी निस्बतें नहीं मालूम? और अगर इन हदीसों पर तुम्हें शक है तो अभी जाबिर बिन अब्दुल्लाह मौजूद है, अबू सईद खुदरी मौजूद है, अभी कई सहाबा रसूलुल्लाह के मौजूद हैं, उनसे जाकर तहकीक कर लो, क्या मेरे रसूल ने ये मेरे मुतालिक नहीं फरमाया? और क्या तुम्हें यह ज़ेब देता है कि तुम रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो और उसी रसूल के बेटे के खून से अपने हाथों को रंगीन करो? ये खुतबा ऐसा दर्दनाक था, कूफियों में इसका असर हो गया, कूफियों के दिलों के अंदर एक रौब तारी हो गया। करीब था कि वहां बगावत हो जाती, करीब था कि लोग तलवारें छोड़ देते, करीब था कि लोग नेज़े फेंक देते, हलचल मच जाती, क्योंकि रसूल पाक के शहजादे की जुबान में जो असर था वो कमाल का था। खुतबा सुनकर कूफियों की आंखों में भी आंसू आ गए थे, रोने लग गए थे। एक तरफ हुसैन अपने खीमे की तरफ दिखाते और कहते, मेरा कौन सा बच्चा अब बचा हुआ है, मेरा कौन सा भाई अब बचा हुआ है? देखो तुमने मेरे खीमे को लूट लिया, मेरे घर के टुकड़े कर दिए, अब भी अगर तुम चाहते हो तो मैं माफ करने को तैयार हूं, मेरे खून से रंगीन न करो अपने हाथ। कूफियों पर जब ये तकरीर असर करने लग गई, अम्र बिन साद खड़ा हो गया, शिमर दिलजोशन जो हरामुत्तहर कमीना इंसान था, जलील तरीन इंसान था, वो खड़ा हुआ और वो भी फसी व बलीग खुतबा देता था। खड़े होकर के उसने गालियां देना शुरू किया, आपकी इज्जत पर हमले करना शुरू किया, कहा ये कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब है, झूठा झूठे का बेटा है, नाउज़ुबिल्लाह, सबको गालियां दिया। और उसके बाद कूफियों से कहा, अगर तुम में से एक भी बगावत कर गया तो मैं यजीद के सामने लिख कर भेजूंगा, तुम्हारी नस्लों को खत्म कर दिया जाएगा, तुम्हारे खानदान उजाड़ दिए जाएंगे, कूफा को तहस नहस कर दिया जाएगा। खबरदार कोई हुसैन की तकरीर पर दिल पजीर ना होने पाए। उसके बाद शिमर दिलजोशिन की तकरीर असर कर गई, फिर लोगों से कहा गया, हम हुसैन की तकरीर से माइल नहीं है, उनकी तरफ रग़बत नहीं करते, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। इमाम हुसैन ने कहा, इत्माम हुज्जत के लिए मुझे जो कहना था मैंने कह लिया, अब तुम्हारी मर्जी, आओ मुकाबिल के लिए। अब मुकाबिल के लिए जो लोग आए, हुज़ैल एक शख्स था, उसके बाद एक अब्दुल्ला बिन समदानी था और कई लोग ऐसे एक के बाद दीगरे आते रहे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दो नहीं, कई लोगों को मारकर गिराते रहे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीबन 100 के करीब लोगों को जख्मी कर चुके थे। तन्हा अली का लाल हजारों में घिर गया, फातिमा का गुल आजार, ये फातिमा का शेर हजारों में घिर गया। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इमाम हुसैन लड़ते रहे, कई लोगों को जख्मी करते रहे और उसके बाद वही मामला, प्यास की शिद्दत, प्यास की शिद्दत, बेटों का गम अलग है, भाइयों की लाशें अलग है, बीवियों का अकेला होना अलग है। कितना बोझ लेकर मेरा हुसैन लड़ रहा था, कितनी जिम्मेदारियां लेकर ये घोड़े का शहसवार था। हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मुकाबला करते रहे, थक करके उनकी गर्दन झुक जाती थी, फिर तलवार उठाते थे, फिर लड़ते थे, यहां तक कि अमर बिन साद ने और शिमर दिलजोशिन ने, खुली बिन यजीद ने, ये सारे लोगों ने भड़काया और कहा, ऐसे नहीं, जैसे इससे पहले इनके खानदान के बेटों को पहुंचाया गया है मौत की तक, इसी तरह इनके साथ भी मुकाबला होगा। हुसैन इब्ने अली के पास 200 सवारों को लाया गया और हर जगह से तीर बरसाया गया। कभी हुसैन के जिस्म पर इधर से तीर आए, उधर से तीर आए, अपने ढाल से बचाते रहे, यहां तक कि तारीख निगारों ने बताया है आपके जिस्म मुबारक पर 72 तीर लग गए थे। कोई जिस्म का हिस्सा बाकी नहीं था, चेहरे पर भी, सीने पर भी, कंधों पर भी, पिंडलियों पर भी, रानों पर भी, पेट पर भी, पीठ पर भी, हर जगह चीरों से बौछार, हर तीर जाता जिस्म में पैवस्त होता, हर तीर जाता जिस्म में पैवस्त होता। इमाम हुसैन के पास इतना मौका भी नहीं था कि वो तीरों को निकाल ले, और यहां तक कि घोड़े से उतरकर लेटने का इरादा क्या किया, आपको ये गम सताने लगा, जमीन पर लेटने के लिए जिस्म भी बाकी नहीं है, लेटते तो कोई ना कोई तीर पर ही लेटते और तीर अंदर चला जाता, घोड़े पर ही सवार रहे, घोड़े पर ही सवार रहे। फिर पुकार कर कहा, ऐ लोगों देखो, पूरी दुनिया में जहां जहां इस्लामी हुकूमतें हैं, अज़ानें हो रही होंगी और मिंबर पर खतीब खुतबा दे रहा होगा, मेरे नाना का खुतबा पढ़ रहे होंगे, जुमा का दिन है, रसूलुल्लाह का खुतबा दे रहे होंगे,
जुमा के दिन लोग नमाज के लिए सजदा रेज हो जाते हैं। क्या तुम में से किसी के अंदर इतनी सख्त नहीं है, इतनी जुर्रत नहीं है कि रसूलुल्लाह के नवासे को 2 रकात नमाज पढ़ने का वक्त दिया जाए? थोड़ी देर के लिए हट जाओ। कूफी हट गए, यहां तक कि तलवारों से जो मुकाबला करने वाले नामर्द गीदड़ थे, करीब आने को तैयार नहीं थे। तीरों से बौछल कर दिया, छलनी कर दिया, लेकिन करीब आने को कोई तैयार नहीं। दूर से तीर फेंक करके हमला कर रहे थे। इमाम आली मकाम उनके तीरों की तरफ कोई नजर नहीं फरमाई और उनकी तरफ नजरअंदाज करते हुए घोड़े से आप पहली मर्तबा उतरे थे और मैदान करबला में निहायत ही खुशू खुजू के साथ आपने नमाज के लिए रकात बांध ली। तारीख में यह बताया गया, चाहे वो आपने नमाज की रकात के लिए बांधा हो या फिर अल्लाह करीम की बारगाह में सजदा किया हो, जो भी हो इबादत ही थी। उनका कदम कदम वहां इबादत था, उनका लम्हा लम्हा वहां इबादत था। इमाम आली मकाम थकान से चूर थे। उसके बाद जब आपका सर सजदे की तरफ गिर पड़ा, आप सजदे की तरफ गिरे, होली बिन यजीद शिमर दिल जोशन दुनिया के बदतरीन लोग थे, करीब आए। एक शख्स ने आपकी पीठ पर पांव रखा, दूसरे ने आपकी गर्दन पर तलवार रख करके आपकी गर्दन मुबारका को जिस्म से अलग कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है। मियां ने अहले बैत, तन्हा अली का लाल खारों में घिर गया, फातिमा का लाडला हजारों में घिर गया। हुसैन इब्न अली की शहादत हुई, लोगों में आवाजें बुलंद हो गई, तबल बजने लग गए, नक्कारे बजने लग गए, झंडे उठा दिए गए और उसके बाद जश्न का माहौल था। इधर से बीबियां ये कहती रह गई, सकीना कहती रह गई, बाबा को हम आखिरी मर्तबा एक ही बार देख सके। अब उसके बाद मैदान करबला की हालत ये थी, हुसैन सुबह से लाशें उठा रहे थे, हुसैन की लाश उठाने वाला कोई जवान नहीं था। वो लाश मुबारका वहीं पड़ी रह गई और जिसमें अकदस करबला के मैदान में वैसी ही रह गया। कूफी यजीदी इतनी भी अपने अंदर अखलाकी जुर्रत नहीं रखते थे कि लाश को उठा करके रख दिया जाए। मैदान करबला में बिखरी हुई लाशों पर वो घोड़े दौड़ाते हुए अपनी सिमत निकलते रहे, अपने और जाते रहे। और हुसैन इब्न अली की शहादत के बाद आसमान रंगीन हो गया होगा। इस सूरज ने आज तक ऐसा वाकया देखा नहीं होगा। जमीन खून बहा चुकी होगी और फिर करबला के मैदान से यह पैगाम रहती दुनिया तक पहुंचाया जाएगा कि जालिम कुत्तों ने हमला करके मेरे नबी के घराने को काट तो दिया, लेकिन ऐ कुत्तों बताओ, तुम्हारे यजीद नाम का कोई बच्चा भी दुनिया में मिलता हो तो लाकर खड़ा करो, लेकिन ना ला सकोगे न यजीद की ज़ुर्रियत, ना उसकी औलाद, ना उसका नाम। हाँ, अगर गली कूचे में कहीं पर भी जाओगे तो हुसैन नाम का हर बच्चा हमारे मोहल्ले में नजर आएगा। इसी को शायर ने कहा है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सलाम तुरबत हुसैन पर, तू न रहता तो न रह जाती सदाकत ऐ हुसैन, कलमा तौहीद है तेरी शहादत ऐ हुसैन, फिर जमाने नौ को है, फिर यजीदियत के दौर का आने का है एहतिमाल, फिर जमाने नौ को है तेरी जरूरत ऐ हुसैन, तेरी जरूरत ऐ हुसैन। ऐ मेरे अजीजों, ऐ गुलामों, ऐ जानिसारान अहले बैत, अल्लाह करीम हमें करबला के इन खाकसारों में शुमार फरमाए और खानदान अहले बैत के कुत्तों में हमारा शुमार फरमाए। खड़े होकर करबला के जानिसारों की बारगाह में हम सलाम अकीदत पेश करें और उसके बाद मुख्तसर बाद करबला के वाकयात के बाद हम फातिहा करेंगे और नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। करबला के खाकसारों को भी सलाम इंशाअल्लाह अजीज। हमारी इस फातिहा के बाद हमारी इन मजलिसों का खिराज अकीदत और ईसाल सवाब हम पेश करते हैं बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और उनके तमाम असहाब में, अंबिया, सालिहीन, मुरसलीन में। उसके बाद शुहदाए करबला की बारगाह में मैं तमाम शुहदाए करब बला रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के नामों की तिलावत करता हूँ और हमारा ये मानना है कि अल्लाह ताला उनके नामों में इतनी असर रखा है, इतनी बरकत है कि हमारी जिंदगी में आई हुई तमाम परेशानियां इनके नामों की बरकत से अल्लाह दूर फरमाएगा और हर तरह की हाजत को अल्लाह ताला इनके वसीले से पूरी फरमाएगा। लिहाजा मैं ईसाले सवाब के तौर पर भी शहीदान करबला जो 72 की तादाद में हैं उनके नामों की तिलावत करता हूं। हर नाम के आगे आप रदी अल्लाह अन्हु पढ़ा करें और सलाम भेजा करें। अल्लाह ताला हम सब की इस तिलावत को भी कबूल फरमाए।
اللهم اوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأنا من القرآن الكريم ما صلينا وما سلمنا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وإلى أهل بيته وأزواجه وأمهاته وأبنائه وبناته رضوان الله عليهم أجمعين. خاصة أوصل ثواب قراءتنا إلى سيدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ، سیدنا عباس ابن علی، سیدنا علی اکبر بن حسین، سیدنا علی اصغر بن حسین، سیدنا عبداللہ بن علی، سیدنا جعفر بن علی، سیدنا عثمان بن علی، سیدنا ابی بکر بن علی، سیدنا ابی بکر بن حسن بن علی، سیدنا قاسم بن حسن بن علی، سیدنا عبداللہ بن حسن، سیدنا عون بن عبداللہ بن جعفر، سیدنا محمد بن عبداللہ بن جعفر، سیدنا عبداللہ بن مسلم بن عقیل، سیدنا محمد بن مسلم، سیدنا محمد بن سعید بن عقیل، سیدنا عبد الرحمن بن عقیل، سیدنا جعفر بن عقیل، سیدنا حبیب بن مظاہر اسدی، سیدنا انس بن حارث اسدی، سیدنا مسلم بن اوسجہ اسدی، سیدنا قیس بن عشر اسدی، سیدنا ابو ثمامہ بن عبداللہ، سیدنا بریر حمدانی، سیدنا عابد شاکری، سیدنا عبد الرحمن رہبی، سیدنا سیف بن حارث، سیدنا عامر بن عبداللہ حمدانی، سیدنا ہندہ بن حارث، سیدنا شوزب بن عبداللہ، سیدنا نافع بن حلال، سیدنا حجاج بن مسروق، سیدنا عمر بن کرملہ، سیدنا عبد الرحمن بن عبد رب، سیدنا ہندہ بن کعب، سیدنا عامر بن ہند، سیدنا نعیم بن عجلان، سیدنا سعد بن حارث، سیدنا زہیر بن قیم، سیدنا سلمان بن مضارب، سیدنا سعید بن عمر، سیدنا عبداللہ بن بشیر، سیدنا وہب کلبی، سیدنا حرب بن عمر، سیدنا زہیر بن عامر، سیدنا بشیر بن عامر، سیدنا عبداللہ رواح غفاری، سیدنا جون غلام ابی ذر غفاری، سیدنا عبداللہ بن یزید، سیدنا سلیم بن امین، سیدنا قاسم بن حبیب، سیدنا سعید بن سلیم، سیدنا نعمان بن عمر، سیدنا یزید بن سبید، سیدنا عامر بن مسلم، سیدنا سیف بن مالک، سیدنا جابر بن حجاج، سیدنا مسعود بن حجاج، سیدنا عبد الرحمن بن مسعود، سیدنا بکیر بن حی، سیدنا عمار بن حسن تائی، سیدنا زرفامہ بن مالک، سیدنا کینانہ بن عتیق، سیدنا عتبہ بن سولت، سیدنا حر بن یزید تمیمی، سیدنا عقبہ بن سولت، سیدنا جبلہ بن علی شبینی، سیدنا کم بن عمر، سیدنا عبداللہ بن بکیر، سیدنا اسلم غلام ترکی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. الہ العالمین، احکم الحاکمین، یا رب العالمین، خلاق کائنات مولا، ان شہیدان کربلا کی برکت سے ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ رب العالمین، ان شہداء کرب و بلا کی قربانیوں کا صدقہ ہمیں عطا فرما، ہماری مصیبتیں، ہماری پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ پھر سے یزیدیت کے فتنے جنم لے چکے ہیں مولا، ان شہداء کربلا کی طاقت و قوت اور ان کی جانثاری ہمارے بچوں میں عطا فرما. مولا ہمارے بازوؤں میں قوت حیدری عطا فرما. مولا حسین کے قدموں میں زندگی عطا فرما. زندگی بھر مولا اہل بیت کے غلاموں میں شمار فرما، اور قیامت کے دن مولا ہمارے گھر کو، ہمارے افراد کو، ہماری نسلوں کو اہل بیت اطہار کے جانثاروں میں شمار فرما. اے کریم خدا ارحم الراحمین، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا کر. مولا جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں عطا کر. جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ان کے قرضوں میں آسانیاں دے دے. جو ناحق جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کی سبیل پیدا فرما. اے کریم خدا ارحم الراحمین، مولا جو ناموس رسالت کے لیے ہمارے بچے جیلوں میں قید کیے گئے، میرے شہر ہبلی کے بچے، اے اللہ ان سب کو رہائی عطا فرما. مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو رہائی عطا فرما. اے کریم خدا ارحم الراحمین، مولا خصوصاً تیرے دربار میں التجا ہے، ظالموں کے چنگل سے ہمیں آزاد کر دے. ہمارے ملک کو امن و امان عطا فرما. اے اللہ باطل فاشسٹ طاقتوں اور قوتوں سے اسلام اور تمام احکام اسلام کی حفاظت عطا فرما. اے قدیر و جبار خدا،
दुश्मनाने रसूल को फना फिन्नार फरमा दे, तो अजाब अलीम में उन्हें गिरफ्तार फरमा दे। ए करीम खुदा, कयामत तक हमारी नस्लों में आशिकाने मुस्तफ़ा पैदा फरमा, हमारी औलाद को, हमारी नस्लों को बदअकीदा और गुमराह होने से महफूज फरमा। खुसूसियत के साथ मौला हमारे इस मोहल्ले में इत्तिहाद और इत्तेफाक अता फरमा। इस पूरे इलाके विक्रोली, पाक साइड और ये इलाका जितने आसपास इस मस्जिद के पड़ोसी हैं, ए रब्बल आलमीन, इन सब के लिए तेरे दरबार में हाथ उठाकर अर्ज करता हूँ, आखिरी सांस तक मौला इन गयूर मुसलमानों को किसी गैर का मोहताज ना बना। मौला जिंदगी भर तो इन सबको बेनियाज रख, अपना और अपने हबीबों का मोहताज बनाए रख। ए रब्बल आलमीन, इन तमाम लोगों ने हमेशा करीम खुदा मेरे दीनी कामों में मेरी हिमायत की है, मैं इनका बदला नहीं दे सकता। ए रब्बल आलमीन, क़यामत के दिन तो अपनी शान के मुताबिक इन सबको अजर अजीम अता फरमा। ए रब्बे कदीर अहसन अल खालिकीन, मरकज नामों से रिसालत को तरक्की अता फरमा। ए अल्लाह, इसमें आने वाली रुकावटों को दूर फरमा दे, दुश्मनानों को जलील खार फरमा दे। ए अल्लाह, हमारे इस पाक साइड मोहल्ले को मौला हर तरह की बरकतों से नवाज दे। ए अल्लाह, तो रहमतों से नवाज दे। ए करीम खुदा रहमान रहीम, इस पूरे इलाके को मरकज इश्क रसूल बना दे, हर बच्चे को मौला आशिक रसूल बना दे, तेरे हबीब का सच्चा मुजाहिद बना दे। मौला हमारी दुआओं को मौला हुसैन के कदमों के सदके कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी अजमईन। एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और सारे सहाबा के नाम पर अल फातिहा। तमाम ताबाईन रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, शुहदाए उहद, शुहदाए बद्र, शुहदाए खंदक, शुहदाए करबला, शुहदाए ताइफ, तमाम शहीदों की अरवाह तैयबा को और ताबाईन औलिया कामिलीन की अरवाह को अल फातिहा। तमाम आइम्मा मुज्तहिदीन, तमाम आइम्मा मुहद्दिसीन, तमाम उलमाए इस्लाम, जितने लोगों ने दीन की खिदमतें की हैं, दामे दिरमे कदमे सुखने, उन तमाम आइम्मा कराम और उम्मत के मोहसिनीन के नाम अल फातिहा। तमाम सलासिल हक्का, सिलसिला आलिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सुहरवर्दिया, खुसूसन सिलसिला कादरिया के जुमला मशाइख अरवाह, उनकी अरवाह को एक मरतबा अल फातिहा। आखिर में कुल उम्मत मुस्लिमा खुसूसियत के साथ हमारे खानदानों में जिनका इंतकाल हो चुका, हमारे वालिदैन, मेरे वालिद और आप सबके खानदानों में जो इंतकाल पा चुके, जो कब्रस्तानों में महफूज जा चुके हैं, उन सब मोमिनीन मोमिनात की कब्रों के लिए एक बार अल फातिहा। आखिर में मौला करीम की बारगाह में दुआइया तौर पर हम सब की सेहत और सलामती, ईमान की हिफाजत, अकीदे की हिफाजत, अमल की हिफाजत, माल की हिफाजत, जान की हिफाजत, हमारी नस्लों की हिफाजत, हमारी औरतों की हिफाजत, हमारी बच्चियों, बीवियों, बहनों, सबकी इज्जतों की हिफाजत और कवानीन इस्लाम सबकी हिफाजत के लिए आखिर में एक मरतबा अल फातिहा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। करबला का ये खूनी मंजर आपके सामने बयान हो चुका। उमूमन दास्तान करबला इमाम अली मकाम की शहादत तक है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं करबला के बाद क्या हुआ, क्या हुआ। मेरे अजीजों, उनके शहजादों ने जब ये बात कही थी इमाम अली मकाम के लिए कि अब हुसैन इब्न अली इमाम अली मकाम के बाद जिंदा रहने का मतलब ही क्या है, उनके बाद तारीख क्या है, उनके बाद जीने का मजा क्या है। लेकिन चूंकि इस्लाम यहां तक फैला है, आया है अब तक सही सलामत, तो तारीख तो बयान होगी इंशाअल्लाह अज़ीज। इसके बाद जो जुमा आएगा, अगर जिंदगी बाकी रही तो करबला के बाद के वाकयात में जुमा में कवर करने की कोशिश करूंगा और आपके सामने वो बातें रखूंगा। लेकिन मुख्तसरन ये है, करबला के मैदान में इमाम हुसैन की शहादत के बाद अचानक ये अहले बैत नबूवत के खीमों पर हमला किया कूफियों ने, और जितनी औरतें थी उनको बांदी बना दिया गया, कैदी बनाया गया और बेड़ियां डालकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी और खानदान नबूवत की औरतों को भी
ले जाया गया और यहां से ये काफिला इमाम हुसैन के सर के साथ गया था। हुसैन आजम का सर नेज़े में डाल करके ये लोग कूफा लेकर के आए थे इब्ने जियाद के पास, और इब्ने जियाद इमाम अली मकाम के सर के साथ बेइज्जती बेहुरमती करता रहा। और फिर यह काफिला, लुटा हुआ काफिला अहले बैत का, दिमश्क गया था, मुल्क शाम यजीद के दरबार में पहुंचाया गया था। वहां तक ये काफिला कैसे गया होगा, कितना लंबा सफर किया होगा। लेकिन मेरे अजीजों, हकीकी बात तो यह है कि हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, सच कहा है शायर ने, चुन कर कहा है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। एक ही वाकया दिल दहला देता है। बीच रास्ते में एक जगह ये काफिला रुका था, एक गिरजाघर था, एक ईसाई पादरी रहता था, कनीसा यानी उनका चर्च था। उसने देखा, रात को ठहरने का मौका दिया, पूछा ये कौन लोग हैं, किसके सर ले जा रहे हो? कहा कि हुसैन इब्ने अली जो बागी थे हमारे खलीफा के, मार दिया गया, काट दिया गया और सर लेकर जा रहे हैं। उस पादरी ने देखा और फिर चेहरे को देखने के लिए करीब आया तो हैरत की बात है, फिदा हो गया। कहा ये चेहरा मुझे एक रात रखने के लिए दे सकते हो? कहा हरगिज नहीं, ये अमानत है, हम यजीद के दरबार तक पहुंचाने के लिए अमीन है। नहीं दिया, लेकिन इन लालची कुत्तों को कभी भी माल से खरीदा जा सकता था। उस ईसाई पादरी ने 12,000 दिरहम, उस वक्त जो चांदी के सिक्के थे, थैली में भर कर लाया और कहा ये ले लो नजराना, एक रात मुझे दे दो और कल सुबह फिर लेकर चले जाना। उन्होंने कहा रात को रखना ही है। उस ईसाई पादरी के पास उन्होंने ये सर दे दिया। इमाम अली मकाम का सर लेकर वो ईसाई पादरी, चर्च में रहने वाला राहिब है, लाया। जितनी धूल गर्दो गबार लगी हुई थी सबको, चेहरे को साफ किया, बालों को साफ किया, कटे हुए सर को एक तख्त पर रखा और उस पर थोड़ी सी खुशबू लगाया। देख करके वो गम के साथ बैठा, आंखें भिगोता रहा। उसने सोचा ये कैसी कौम है जिस रसूल का कलमा पढ़ती है, उस रसूल के बेटे को काट करके लाई है। और उसके बाद उस ईसाई ने सर को वहां रखा था, ऊंघ आई, सो गया। लेकिन किस्मत जाग गई, मेरे आका तशरीफ लाए। ख्वाब में रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कहा मेरे बच्चे के चेहरे से तूने धूल साफ की, तेरे दिल से कुफ्र और शिर्क को मैं साफ करता हूं। पढ़ मेरे हाथ पर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो ईसाई पादरी मेरे मुस्तफा के हाथ में ही कलमा पढ़ा। सुबह उठा या जैसे ही उसकी नींद खुली, देखा तो उसकी किस्मत जाग चुकी है, हर तरफ खुशबू ही खुशबू है। एक तो हुसैन का चेहरा देखा था और ख्वाब में इनके नाना का भी चेहरा देख लिया। किस्मत कैसी जागी है, इसी को मैं एक झलक आपके सामने रखा, एक ही मिसाल रखा। सुबह तो उसने सर वापस कर दिया, लेकिन यही तो हम कहते हैं, ऐ जालिमों, तुम हजारों की तादाद में होकर इस्लाम को उस तरह नहीं फैला सके जिस तरह कटा हुआ सर भी गिरजा घर में जाकर ईमान फैला रहा है, इस्लाम की दौलत से रोशनास कर रहा है। इसी को शायर ने कहा था, कट जाना कत्ल हो जाना, इससे फैसला नहीं होता कि कौन जीता कौन हारा। हकीकत तो बाद के हालात बताते हैं। कटा हुआ सर भी अभी लोगों में तबलीग कर रहा है, कटा हुआ सर अब भी लोगों को इस्लाम की तरफ बुला रहा है। हकीकत में यही तो फतह है और इसी को आज हम करबला के मैदान में जाकर देखते हैं। आज पूछना किसी से, दिमश्क में जाकर, मुल्क शाम का ये कैपिटल सिटी है, राजधानी है दिमश्क, जाकर पूछना यहाँ कभी यजीद का दरबार लगता था, यहाँ खिलाफत हाउस हुआ करता था, यहाँ बड़ी इमारत थी, वो कहाँ है? मुझे पता है, हमारे साथियों ने कहा कि लोग तुम्हें पकड़ करके ले जाएंगे और एक ऐसी जगह खड़ा कर देंगे जहां पर यजीद मरकर खत्म हुआ, उसकी कब्र महफूज नहीं, ले जाकर के तुम्हें ऐसी जगह खड़ा कर देंगे जहां सड़न की बदबू ऐसी आती है। दिमश्क वाले अपना पूरा गार्बेज, अपना कचरा जहां लाकर डम करते हैं, फेंकते हैं, जहां कुत्ते आज भी पेशाब करते होंगे, उस जगह पर यजीद के मुतालिक लोग बताते हैं यहां खत्म हो गया, यहां उसका दरबार खत्म हुआ। और मेरे अजीजों, अगर किस्मत साथ दे तो एक बार इराक के शहर उस करबला के मैदान में भी जाना, वहां जाकर के पूछना, सुना है यहां एक मैदान था और यहां पर कोई घर नहीं था, यहां पर कोई पानी का कोई इंतजाम नहीं था और रसूलुल्लाह के शहजादे कट कट करके गिरे थे, इस मैदान में उनके टुकड़े उड़ाए गए थे। लोग तुम पर हंसेंगे और कहेंगे यहां अपना मैदान है, ना बेआबो गया कोई मैदान है, सहरा है, बल्कि करबला का मैदान तो ऐसी घनी आबादी में तब्दील है कि उस आबादी के बीचों बीच एक अजीम किला नजर आता है जिसका गुंबद सोने से कलई किया हुआ, गुंबद के ऊपर लाल झंडा लहराता हुआ लोग ले जाकर खड़ा कर देंगे और कहेंगे जिसको तू कह रहा था 1000 टुकड़ों में बदल गए, यह उस शहंशाह का दरबार है। यहाँ लोग आज भी चिट्ठियों में अपनी हाजतें लिख लिख करके लाते हैं और रोज़े हुसैन पर डाल कर जाते हैं। वो चिट्ठियों का अंबार देखो तो छत तक लग जाता है,
पता ये चला यजीद के दरबार शाही में आज कोई अपनी हाजत लेकर नहीं जाता, और कटे हुए सर के पास भी कयामत तक लोग अपनी हाजतें लेकर जाते हैं। हुसैन मेरे बच्चे बिगड़ गए, हुसैन मेरी औलाद नहीं होती, हुसैन मेरा बिजनेस नहीं चलता, मेरा कारोबार नहीं चलता, हुसैन मेरे फलां बीमार है, हर घड़ी अपनी हाजतें लेकर जाते हैं। यह मसला ये बात साबित कर देता है आज तक अगर रियाया अपनी हाजतें लेकर जा रही है तो किसी मुर्दा के पास नहीं, जिंदा शहींशाह आजम के पास ले जा रही है। इसीलिए फतह का नाम हमेशा हुसैन के नाम से जुड़ा हुआ है। सलाम उस तुर्बत हुसैन पर, मौला करीम आखिरी सांस तक हमें हुसैन आजम के गुलामों में शुमार फरमाए। मेरे अजीजों, कसम देता हूं तुम्हें रब्बे जुल जलाल की, और वास्ता देता हूं मेरे मुस्तफा का, और वास्ता देता हूं शहीदाने करबला का, जिंदगी में चाहे कोई करोड़ों की दौलत लेकर के आए और एक तरफ हुसैन आजम की कुर्बानियां, तो तुम इस दौलत को ठोकर मार देना और कहना मेरे जिस्म के छींतरे उड़ जाएं, लेकिन मैं हुसैन का मिशन छोड़कर तेरी दौलत का कुत्ता नहीं बन सकता। इस अहद पर आज कायम रहो। दुनिया आज खरीदने के लिए आएगी तुम्हारे पास। आज खरीदो फरोख्त जैसे पूरी पूरी पार्टियां बिक जाती हैं, घोड़े नहीं अस्तबल खरीदे जाते हैं, इस तरह तुम्हारी भी खरीदारी होने वाली है। लोग खरीद करके तुम्हें अपना वजीर बना लेंगे, अपना कुत्ता बनाकर घुमाएंगे। हमने देखा है, अरे बाज़ाब्ता आरएसएस जमात में मुसलमानों की शमूलियत है, एक पूरा मंच कायम किया गया। क्यों? तुम्हारे दरमियान फूट डालने के लिए और ये बताने के लिए कि हम तो अमन के मसीहा हैं, हम तो अमन की चाहने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना दीन बेच दिया है। और ये मीडिया के दज्जालों के इन कोठों पर जो जाकर दाढ़ी टोपी वाले बैठते हैं या इस्लाम पर उंगलियां उठा करके हमले करते हैं, आप क्या समझते हैं ये नाम के मुसलमान हैं? इन्होंने तो कब का अपना दीन बेच दिया है। ये चंद सिक्कों पर बिकने वाले, अभी अभी 2 साल कबल लखनऊ का एक राफजी कुत्ता जो हकीकत में शिया कहता रहा अपने आप को, हुसैन आजम का नाम लेने वाला। हैरत की बात होती है, हुसैन का नाम लेवा कभी गैर के हाथ में हाथ दे, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। लेकिन उस कुत्ते को हमने बदलते हुए देखा, कुरान पर हमला करते हुए देखा, एक छोटी किताब लिख करके लाया कि मैं मोहम्मद की हकीकत बताता हूं। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, उसमें रसूलुल्लाह के अखलाक हसना पर हमले, तीखे हमले किए और कुरान के मुतालिक एक नया कुरान बनाकर लाया। 26 आयतें निकालकर कहा मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, ये पुराना कुरान इस पर बैन लगाओ, मेरा नया कुरान जारी किया जाए। कौन है? एक राफजी कुत्ता पाला हुआ, यही हुकूमत वक्त का पाला हुआ कुत्ता था। और फिर हद ये हो गई कि बाद में बिल्ली थैले से बाहर आई, हकीकत क्या है वो पता चली गया, नाम भी बदल लिया, धर्म भी छोड़ दिया, घर बार छोड़ करके, और फिर साधु संतों की तरह रहने की कोशिश का। मैंने तो देखा है कुछ नहीं, उनका फुजला, उनकी गलाजत चाटने के लिए 6 महीने इधर उधर घूमा, लेकिन मेरे रब का फरमान सच्चा है, ये हरगिज तुमसे कभी राजी नहीं हो सकते। याद रखना, तुम अगर छोड़कर उनको राजी रखने के लिए बदलना चाहते हो, हरगिज राजी नहीं होंगे। तुम्हारी इज्जत तुम्हारे नबी के कदमों में है, तुम्हारी इज्जत रसूलुल्लाह के घर वालों में है। इज्जत ढूंढने के लिए वो तो ऐसी ही हैं बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्तों की तरह, गाड़ी आगे गुजर जाएगी, कुत्ता अकेला रह जाएगा, कुछ होता नहीं। इनकी हैसियत इतनी है, खत्म हो जाती है, हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं। अगर तुम इनकी हमनवाई के लिए अपने साथ, अपने दीन के साथ कोई सौदेबाजी करते हो, याद रखो जिल्लत और खारी तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगी। मैं जिस वसीम राफजी कुत्ते के मुतालिक कह रहा हूं, हमने अब सुना है उसको वहां से भी लात मार करके भगा दिया गया। कब वो कबूल करेंगे? अरे अपनी छोटी कास्ट के लोगों को वो नहीं कबूल करते, तो एक दूसरा धर्म बदल के आए हुए आदमी को कब तक? तुम्हें तो सिर्फ मीडिया में दिखाने के लिए और मुसलमानों को वरगलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बस इतना ही है। इस्तेमाल हो गया 6 महीने तक, लेकिन ये दज्जाली मीडिया ने देखा मुसलमानों पर कुछ असर नहीं होता, इसको बदल करके हमने देख लिया, अरे जमात तो जमात, हमारे 8 साल के बच्चे पर भी फर्क नहीं आएगा। जो हकीकी ईमान वाला है उसके लिए ये सब हालात डगमगाने के लिए नहीं आते। क्या हुआ? अब वीडियो बना बना करके रिक्वेस्ट करता है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री मेरी जान की हिफाजत करें, मैं कत्ल हो सकता हूं, मैं मारा जा सकता हूं। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। अब इस तरह बेयारो मददगार घूमता रहा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? सिर्फ हुसैन का नाम लेने से काम नहीं है, उनके मिशन पर कायम रहना जरूरी है। जैसी भी ताकतें आए, मैं हमेशा ये कहता हूं जिंदगी वैसी भी जाने वाली है, मरना तो वैसी भी है। तलवे चाट कर क्यों मरे? अल्लाह का दीन बुलंद करके मरेंगे, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर मरेंगे। मरना ही है,
حسین کا پیغام یہی ہے، اے نوجوانوں اسی عزم پر قائم رہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی مدد کریں گے، انشاءاللہ مدد آئے گی، مدد آئے گی۔ آج تھوڑا آپ امتحان دے دیں، بچے پھل کھائیں گے انشاءاللہ۔ آج قرآن پر حملہ ہو تو قرآن کو اٹھا لو، قرآن پڑھنا سیکھو، اپنے بچوں کو پڑھانا سکھاؤ۔ اسکول جانے پر جتنی سختیاں کرتے ہو، نہ جانے پر اتنی سختیاں تمہارے بچوں کے مدرسہ نہ جانے پر بھی ہو، کہ بیٹا سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا کلام ہے، قرآن پڑھ لے، بعد میں دنیا اللہ صدقے میں عطا کرے گا۔ مسلمانوں تمہارے گھر میں یہ رواج آ جائے، آپ اپنے بچوں کو، کسی ایک بچے کو بھی، آج کا ہی میرا پیغام ہے خصوصی، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک گھر کا بچہ بھی جاہل رہنے نہ پائے، قرآن سے غافل رہنے نہ پائے۔ اتنا تو ہو کہ کل قرآن اٹھاؤ قیامت کے دن تو قرآن تمہاری سفارش کرے، اے مولا یہ مجھے پڑھتا تھا۔ حدیث میں ہے جو سورہ ملک پڑھتا ہے نا تبارک، قیامت کے دن یہ سورہ اللہ سے جھگڑا کرے گی، لفظ جھگڑے کا ہے، اے مولا یہ پڑھنے والے کی اگر تو بخشش نہیں کرے گا تو مجھے اپنے کلام سے نکال دے۔ رب تعالیٰ سورہ ملک تبارک کے اس مقدمے کو سن کر فرمائے گا تجھ کو پڑھنے والے کی میں نے بخشش کر دی، جا تو اسے جنت میں لے جا۔ مرنے کے بعد یہ سورہ تبارک قرآن کی سورہ ہے، جو پڑھتا تھا نا مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے، روایت میں موجود ہے، تم تو سب دفن کر کے جا چکے ہوں گے، یہ سورہ ملک تبارک اللہ کے پاس جائے گی اور اپنے اس پڑھنے والے کی بخشش کے لیے جھگڑتی رہے گی۔ اللہ جب کہے گا معاف کر دیا جا، یہ سورہ ملک جنت میں جاتی ہے، تکیہ لیتی ہے، بچھونا لیتی ہے، ہوا کا انتظام کرتی ہے، اور واپس سورہ ملک قبر میں آتی ہے اور آ کر کے اس میت سے کہتی ہے دیکھ میں نے تیری سفارش کی، اللہ مان گیا، اور میں نے تیرے لیے جنت سے تکیہ بھی لائی اور میں تیرے لیے بچھونا لائی، کہیں میرے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی؟ میت سے سورہ ملک یہ کہتی ہے جو قبر میں ہمارے لیے ساتھ دے وہ قرآن ہے، آج اٹھاؤ قرآن میرے عزیزو۔ ظالم کتے اگر قرآن کو جلا رہے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر بچہ قرآن اٹھائے۔ ہمارے خاندان میں یہ عزم کرو ایک بچہ تو کم از کم حافظ قرآن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ یہ عزم کرو، کالج پڑھاؤ، یونیورسٹی پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، کیا فرق پڑتا ہے حافظ قرآن انجینئر بن جائے؟ کیا فرق پڑتا ہے تمہیں ڈاکٹر بھی ہو اور حافظ قرآن بھی ہو؟ آپ دنیا ضرور پڑھائیں لیکن بچوں کو بچپن سے حافظ قرآن بھی بنائیں، کل کو اتنا تو سامان ہوگا ہم مر جائیں تو ہماری قبر پر یہ قرآن پڑھے گا، اللہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ اللہ کریم حسین اعظم کے اس پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ میں آج کی اس محفل آخری محفل ہے، شکر گزار ہوں اس مسجد حاضرہ کے، اس مسجد کے خاص متولی صدر و اراکین اور تمام معاونین محلے والوں کو جنہوں نے بڑی عزتوں سے نوازا اور بہت ہی ہمیشہ خیال کیا ہے۔ اللہ آپ کے اقبال بلند فرمائے اور ہمیشہ اس مسجد کو مولا شاد و آباد رکھے اور دین و سنیت کا اس کو مرکز بنائے اور اس مسجد کی برکتیں مولا آپ سب کے گھروں میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔